for asking. Did Rashmi give you my number? I think Rashmi ने ही वहाँ से रश्मि हाँ एक्चुअली रश्मि ने ही हमारे यहाँ से क्लास की है. उससे पहले एक और लड़की थी, वो भी बेसिकली गल्फ से ही थी. बट मे बी आई एम नॉट श्योर. No, I don't know. Okay, I okay. don't know about Rashmi. Okay, maybe. Okay, not a problem. It's okay. All right. So could you tell me something about yourself, please? Yes, my name is Namrata, and recently I'm living in Dubai. And previously I was in India. I'm graduate, postgraduate, but I want to learn because my communication skill is not too good. That's why I want to join the class. All right. Okay, that's great. That's it. Okay, not an issue. We can work on that. So, what other exact problem do you face while speaking English? I mean, like, what do you feel that okay, yeah, these are problems. Like maybe there are people they Yes, face actually. problem while speaking in terms of vocabulary. There are people they face problem in terms of maybe constructing sentences, right? Structures and then other stuff. So, what is exactly your problem? Could you tell me? Yeah, hesitation and some vocabulary. I don't have words. When I going to speak, that time I forgot the words, and I take time to search the word and means now I'm also studying. Okay, no problem. You can just speak comfortably, right? You don't have to hesitate at all. Okay, so it's just fine. Okay, Yeah. no problem. See, the point is that yeah, this happens with a lot of people. It's just not only you. I have seen a lot of students getting stuck in between while speaking. So it's fine. Okay, no problem at all. Okay, we can work on that. Okay. Now I've got it exactly. Okay, so first of all, let me tell you about this course. Like, what do we provide? And then we can just go ahead and then we can work on your problem as well. Okay. So this course is for 90 days. Okay, ये जो हमारा course है, this is for 90 days. ये 90 दिनों का हमारा course रहता है, 3 months का. And within 3 months हम लोग make sure करते हैं कि हम आपको एकदम बिल्कुल basic से start कराएं and we take you towards advanced. Okay, so इसमें जब हम जो हमारे first 30 days होते हैं, we work on your tenses, modal verbs, parts of speech and passive voice. These are the 4 topics which are really important. अगर आपके topics clear हैं, that is very good, बहुत अच्छी बात है. But somewhere if these topics are not clear from your side, then we have to work on it. अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो somewhere we'll be getting stuck. Okay, तो वहाँ पर हम बीच में कहीं ना कहीं रुक रहे होंगे, कहीं ना कहीं hesitate कर रहे होंगे. So it's really important to work on these 4 topics. Let me ask you this question. What do you think about these 4 topics? Do you know about these 4 topics properly? Which type of topic? I'm sure that you can see on your screen. Can you see on your screen? Yeah. Okay, yeah. I'm talking about these topics. I'm talking about tenses, modal verbs, parts of speech, and passive voice. Yes, I know. Okay, that's great. Amazing. Little bit. I'm facing problem little bit, but I know. Okay. So I'm pretty sure that you want to clear it. आप उसे अच्छे से clear करना चाहेंगी, so that you do not have any problem in terms of these 4 topics, right? Because this is something which is called ये जो है इसे हम बोलते हैं functional grammar. And what is functional grammar? Functional grammar is something which is used while speaking English. So it's really important to work on these 4 topics, मुझे in my opinion. ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर बात करेंगे. I'll just check your grammar and then we'll see. Okay. Then when it comes to speaking, जब बात बोलने की आती है तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है एग्जैक्टली? देखिए, जब हम बोलते हैं और जब एक नेटिव स्पीकर बोलता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जब हम बोलते हैं तो हम ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर ग्रामर से हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे कोई भी चीज़ हमें बेसिकली बोलनी है, so most of the time we are using grammar and then we are constructing those sentences and then we are speaking them. But the point is that when a native speaker is speaking, that person doesn't do that. वो ज़्यादातर क्या करते हैं? वो ज़्यादातर बेसिकली डेली एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं. जैसे हम यहाँ पर आपको डेली एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? सो दीज आर ऑलमोस्ट मे बी वी हैव टू लर्न एटलीस्ट लाइक 200 to 300 एक्सप्रेशंस. और इनका क्या होता है कि इनका बेसिकली ग्रामर से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, राइट? ग्रामर में इनका ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है. तो व्हाट डू वी डू? हम लोग क्या करते हैं, हम आपको यहाँ पर ये डेली एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कराएंगे और हम साथ ही साथ इसको आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है?
सो अच्छा, डेली एक्सप्रेशंस में जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा है जो बिल्कुल ग्रामर से एकदम डिफरेंट है। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, हाउ डू यू डू, राइट। हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसे हो, राइट, एंड इट्स अ ग्रीटिंग एक्चुअली। ठीक है, ये बेसिकली जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तब आप इसे बोलते हो, हाउ डू यू डू। सो नॉर्मली इसका मीनिंग निकलता है कि आप कैसे हो, लेकिन जब आप इसे ग्रामर से निकालोगे तो इसका मतलब निकलेगा कि आप कैसे करते हो, राइट। सो यू नो दैट इज़ द डिफरेंस विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, सर उसी सॉरी टू इंटरप्ट। यस प्लीज। लेकिन जब हम पूछते हैं हाउ डू यू डू, तो इसका मतलब होता है आप क्या करते हो, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। नो 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 नो, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट। इट मीन्स आप कैसे हो, आप चेक कर सकते हो। देखिए, हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसे हो, इट्स अ ग्रीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसीलिए हम इसे एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि जब आप इसे, वो होता है व्हाट डू यू डू, जो आप पूछ रहे हैं, जो आप बता रही है ना, दैट इज व्हाट व्हाट डू डू यू यू डू। डू, या एग्जैक्टली, इट्स हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू मीन्स आप कैसे हो। ठीक है, हाउ डू यू डू, हाउ यू डूइंग। ठीक है, और ये कुछ एक्सप्रेशन है जो यूज़ किए जाते हैं जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। देखिए, नॉर्मली अगर आप किसी से हर रोज़ मिलते हो अगर, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे हाउ आर यू का यूज़ कर सकते हो, बट व्हेन यू मीटिंग समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देयर यू कैन यूज़ दिस वन, राइट। दिस दैट इज़ वाई हमें नहीं पता इन चीज़ों का, राइट। जब हमें नहीं पता है तो हम लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं। व्हेन वी डू नॉट यूज़ देम, व्हेन वी कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ लाइक नेटिव स्पीकर, सो देन वी जस्ट गेट स्टक। वहाँ पे हमारी जो है ना, फिर वो हमें लगता है कि आई डोंट नो दिस लैंग्वेज, आई हैव टू लर्न इट, राइट। तो फिर वहाँ पे हमें जो है ना वो सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है। एट द सेम टाइम हम यहाँ पर आपको डेली कॉन्वर्सेशंस कवर कराएंगे, जिसमें मोस्टली आपको ऑलमोस्ट 48 कॉन्वर्सेशंस प्रोवाइड कराई जाएंगे। ये बहुत आप ये मान कर के चलिए कि डेली और रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस हैं। जैसे मान लीजिए आप, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द शॉपकीपर, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको 48 जो है ना वो कॉन्वर्सेशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और उसमें आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। एट द सेम टाइम विल बी लर्निंग अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेन एवर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, दैट टाइम यू हैव टू यूज़ देम। सो अब इसका क्या होता है, ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। इसमें एक वर्ब होती है, एक प्रपोजिशन होती है, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो। जैसे गेट का मीनिंग नॉर्मली पाना होता है, राइट, प्राप्त करना। और जब हम इसमें गेट के साथ ऑन लगा देते हैं तो गेट ऑन का मतलब चढ़ना हो जाता है। कहाँ पे चढ़ना, बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना। ठीक है, सो इसी तरीके से गेट ऑफ होता है। गेट ऑफ का मतलब उन्हीं मतलब ट्रांसपोर्टेशन से उतरना। ठीक है, इसी तरीके से गेट अप होता है, और बहुत सारे इसमें जो है वो फ्रेजल वर्ब्स यूज़ की जाती है। एट द सेम टाइम वहीं पर अगर हम बात करें तो फिर इडियम्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है आज के टाइम में। ठीक है, सो येस, वील बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल, एंड इन दी एंड आपको जो है यहाँ पर स्टोरीज़ कवर कराई जाएंगी। देखिए, एक अच्छी लैंग्वेज बोलने के लिए आपके पास कम से कम 3000 वोकेबलरीज होनी चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ वोकेबलरी इन योर bucket, तो obviously you'll be just like getting stuck, and you'll be just thinking, okay, which word do I have to use at this time, right? So हमें ये यूज़ करने के लिए obviously 3000 वर्ड्स की ज़रूरत होती है, एंड उन्हें कवर करना इट्स नॉट ईजी। In my opinion, it's very difficult to cover like 3000 vocabularies within 3 months, right? But हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम आपको 30 स्टोरीज़ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कितनी, 30 स्टोरीज़ हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे, और ये 30 स्टोरीज़ ऐसी होंगी कि इसमें हर एक स्टोरी के अंदर आपको 100 वर्ड मिलेंगे। ठीक है, 100 वर्ड्स होंगे हर एक स्टोरी के अंदर, 30 स्टोरीज़ होंगी, तो दैट मीन्स 3000 वोकेबलरी हम इस तरीके से कवर करते हैं। विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस 30 स्टोरीज़, एंड वंस यू जस्ट रीड देम, ठीक है, एक बार आप उन्हें पढ़ते हो, एंड देन उसके बाद फिर पढ़ने के बाद उन्हें प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर। मतलब जैसे हम लोग बचपन में लेसन्स पढ़ा करते थे ना, किताबें होती थी हमारे पास, बुक्स में जो है ना वो लेसन्स होते थे, तो उसी तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको 3000 वोकेबलरी आपको कवर कराई जाए। ठीक है, और इन दी एंड जो आपके लास्ट के 30 डेज होते हैं, देयर वी जस्ट मेक यू प्रैक्टिस। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें प्रैक्टिस में आपको क्या क्या चीज़ें कराई जाती है। सबसे पहले आपको डिबेट्स कराया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको डिबेट्स में बैठना होगा। यू विल हैव टू डिबेट विद सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो बेसिकली इंग्लिश सीख चुके हैं और जो सीख रहे हैं। ठीक है, आपके बैच के भी लोग होंगे, एंड एट द सेम टाइम वहीं पर वो लोग भी होंगे जो लोग पहले यहाँ से सीख चुके हैं, जो लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराए जाएंगे जो डेली एक्टिविटीज़ होंगी, एंड देन अदर स्टफ। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यू विल गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पीक, एंड द मोर यू विल स्पीक द मोर यू विल लर्न। सी, इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग। अगर आप नहीं बोलोगे
मुझे तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश, लाइक लर्निंग इंग्लिश इज़ जस्ट लाइक लर्निंग हाउ टू ड्राइव। जब तक आप ड्राइवर की सीट पे नहीं बैठते हो, जहाँ पे बेसिकली ड्राइव की जाती है गाड़ी, तो तब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीखते हो। इन द सेम वे, until you start speaking English, you're not going to learn how to speak it, right? So you will have to speak every single day. You'll have to make mistakes, obviously, but then there should be someone who can correct you. यहाँ पे कोई होना भी चाहिए आपके लिए जो बेसिकली उसे करेक्ट कर सके, राइट? So that's how Okay. we will make you cover all these things, and once you cover all these things, I can just assure you that you will be speaking each and everything, and you will not get stuck at all. Why? Because you will have 3,000 vocabularies, you will have almost like 200 phrasal verbs, you will have almost like 200 expressions, right? But for that you will have to work hard. See, I can't learn on behalf of yours. Obviously आप ही को याद करना पड़ेगा चीज़ें, so वो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम आपको वो चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी, Definitely. राइट? सी, मेरा काम क्या है, मैं तो एक आप ये मान सकते हो, ये सोच सकते हो दैट येस आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट पाथ वेयर यू आर वॉकिंग इन, और वेयर यू आर जस्ट जहाँ पे आप चल रहे हो, राइट? तो अब मैं आपको बस वो रास्ता दिखा सकता हूँ, बट चलना आपने ही है, राइट? यू विल हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ। तो बस मैं आपको ये बता सकता हूँ, हाँ यहाँ से आप ऐसे जा सकते हो, वैसे जा सकते हो। मेन जो चीज़ है वो आपकी तरफ से होगी, एंड दैट इज़ योर वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत करते हो, सो फॉर श्योर यू गोना लर्न। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, आई एम रियली सॉरी, चाहे आप कितना भी अच्छा टीचर ढूंढ लेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। बट अगर आप पैशनेट हो, Okay. सो येस यू आर गोइंग टू लर्न। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सीख पाए हैं, सिर्फ वो ही स्टूडेंट सीखे हैं। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन टीचिंग लास्ट 8 ईयर्स, ठीक है? इन दीज 8 ईयर्स आई हैव सीन दोज स्टूडेंट्स स्पीकिंग इंग्लिश जिनके अंदर एक पैशन था, जो बोलना चाहते थे, दे वांटेड टू लर्न एंड दे लर्नड, राइट? बट देयर वर सम पीपल, दे वर लाइक ओके नाउ आई हैव पेड मनी, ओके अब ये जो टीचर है मुझे सिखाएगा। सो टीचर आपको कुछ नहीं सिखाता है, आपको खुद सीखना होता है, नहीं, राइट? मैं आपको आपको चीज़ें खुद एक्सप्लेन सीखना कर होता सकता है, हूँ राइट? सिर्फ, राइट? मैं सिर्फ आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मे बी ग्रामर के टॉपिक एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है? उसमें प्रैक्टिस के लिए मैं आपको नए नए तरीके मैं आपको क्रिएट करके दे सकता हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे। बट द पॉइंट इज़ दैट द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, द मोमेंट you start just like learning, and then at the same time just executing all those things which you have learned in the past, so obviously you're gonna speak this language, फिर आप इसे ज़रूर बोलोगे। बट जब तक नहीं बोल पाओगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। सो ये चीज़ें हैं, ये हम लोग कराते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट एक बेसिकली जो है ना वो कोर्स रहता है, जिसमें आपको शुरुआत से स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल एकदम इनिशियल। हम लोग अगर आप देखें तो वी स्टार्ट विद टेंसेस, जो कि बहुत ही लो है, राइट? बट येस, हो सकता है शायद आपके क्लियर हो, बट देर आर पीपल दे हैवंट लर्नड अबाउट दीज ऑल थिंग्स, राइट? तो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। Yeah, sure. All right, that's great. So what am I gonna do? I'm just gonna ask you a couple of questions, not in English but in Hindi. You will have to just translate those sentences in English, okay? ठीक है? तो आपको सिर्फ sentences को translate करना है, that's it. तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, without wasting any time. Let's get started. सबसे पहला मेरा सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। I speak English. ओके, सो इट्स लाइक आई स्पीक इंग्लिश। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि वह इंग्लिश बोलता है, He speaks English. सॉरी, पार्डन प्लीज, He speaks English. ही स्पीक्स इंग्लिश, दैट्स ग्रेट। इफ आई से मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं एक ही I'm सेंटेंस, speaking English. ओके, मैं इंग्लिश 2 दिन से बोल रहा हूँ। I'm speaking English from 2 days. Could you please correct your sentence because this is not correct. Sorry? मैं इंग्लिश 2 दिन से बोल रहा हूँ, ये करेक्ट नहीं बताया आपने। I have been speaking English for 2 days. 2 दिन से बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, एंड एक्चुअली देखो अभी क्या है ना, अभी मैंने आपको बोला तो ये आपने बता दिया, राइट? बट वहीं पर जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप वही ज़ारिम लगा करके, फोर फ्रॉम लगा करके ना बोल दोगे, एंड हो सकता है शायद जहाँ आप बोल रहे हो वहाँ पे इंग्लिश मैटर ना करती हो तो ठीक है, बट अगर कहीं पर करती है तो ऑब्वियसली फिर वो आपको Actually, English matter करती है, that's why I want to learn. नो, एक्चुअली क्या होता है ना, मान लीजिए आप किसी को इंटरव्यू आप दे रहे हो,
राइट, यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू। Yes. तो ऑब्वियसली जब आप हाँ इंटरव्यू जी। में गलत इंग्लिश बोलोगे सो दैट पर्सन विल जज यू ऑन दैट ऑब्वियसली, राइट। और अगर वहाँ पे मैटर करती है अगर इंग्लिश, फॉर एग्जांपल यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू इन बीपीओ, ठीक है, आप बीपीओ में इंटरव्यू दे रहे हो, तो बीपीओ में क्या है, बीपीओ में आपको इंग्लिश की ही ज़रूरत होती है, एंड देयर यू मेक वन मिस्टेक एंड दे विल रिजेक्ट यू, राइट। तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती है विच वी विल हैव टू वर्क, ठीक है, जिनके ऊपर हमें काम करना होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर बाय जस्ट वर्किंग ऑन दीज ऑल थिंग्स वी विल बी एबल टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स। चलिए कोई बात नहीं, एनीवेज। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, I can speak English. ऑलराइट, मैं इंग्लिश बोल सकता था। I could speak English. अच्छा, इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ सकता था के लिए ना, दो तरीके से हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं। एक तो सिर्फ जो आपने लगाया आई कुड स्पीक इंग्लिश भी आप बोल सकते हो, बट वहीं पर कुड हैव का भी यूज़ किया जाता है विद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म के साथ हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो दैट आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, वो बोला कब जाएगा, लेट मी टेल यू। वो बोला तब जाएगा जब आप बेसिकली अगर आप एक सिंगल सेंटेंस आप बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप एक सिंगल सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं है पास्ट का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसे, अगर रेफरेंस हमें पहले से नहीं मिला है कोई भी, तो यहाँ पर मुझे सेंटेंस बोलना पड़ेगा आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि जब मैं दिल्ली में था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था, अब जब मैं दिल्ली में था ये मुझे रेफरेंस मिल गया कि पास्ट का सेंटेंस है, तो वहाँ पर फिर मुझे बोलना पड़ेगा व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई कुड स्पीक इंग्लिश, जो आपने अभी बताया, ठीक है। यानी अगर एक सिर्फ सिंगल सेंटेंस आप बोल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कुड हैव का Okay. यूज़ करना है। बट वहीं पर अगर आप पहले से कोई Could बात have. कर रहे हो पास्ट की, फिर उसके ऊपर आप बोलते हो कि मैं ऐसा कर सकता था, कर सकती थी, तो वहाँ पर फिर आप कुड हैव का यूज़ करते हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, Yes. एनीवेज। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए I should speak English. और मुझे इंग्लिश ज़रूर बोलनी चाहिए, Mm, sorry. मुझे इंग्लिश ज़रूर बोलनी चाहिए, उसके लिए हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं ना, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, I must. Yeah. एग्जैक्टली, ठीक है। I must speak English. और इफ़ आई से दैट मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, Mm, sorry. चाहिए था के लिए हम लोग शुड हैव का यूज़ करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। Should have. या एग्जैक्टली, आप बोल सकते हो विद पास्ट Should पार्टिसिपल have. फॉर्म, हाँ यार, आप बोल सकते हो आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई शुड हैव Spoken English. Like could. या Right. Third form we will put third form there. एग्जैक्टली आप थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा सा इसे डीपली जो है उसमें जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने मस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं कि मुझे ऐसा ज़रूर करना चाहिए, राइट, जब हम बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर होता है एक तरीके से, यानी जो चीज़ हमें करनी ही चाहिए, राइट, जैसे हम लोग बोल सकते हैं वी मस्ट प्रे, ठीक है, हमें प्रे ज़रूर करनी चाहिए, राइट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर आर यू नो लाइक जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेयर करना, राइट। तो इन द सेम वे, तो जब भी हम लोग इस तरीके की कोई बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, राइट, हमें ज़रूर ही करना चाहिए, राइट, वेर वी आर नॉट जस्ट एडवाइजिंग समवन, वी आर जस्ट यू नो लाइक आस्किंग देम टू डू दैट इट्स जस्ट लाइक अ कंपल्जन, ठीक है, वो एक कंपल्जन की तरह है कि करना ही करना है, राइट। तो वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन वहीं पर हम पास्ट में, अच्छा, मस्ट हैव का क्या यूज़ हो सकता है, आप मुझे बता सकते हो? हैव यू एवर यूज्ड अबाउट मस्ट हैव? Must have. हमें जरूर करनी चाहिए थी. नो, नॉट लाइक दैट। Not? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता इसमें। मस्ट हैव का जो यूज़ है, एक्चुअली ये तीन यूज़ होते हैं, एक तो मस्ट हैव होता है, एक इसमें माइट हैव होता है, Might. और एक इसमें मे हैव होता है। इन तीनों का सेम यूज़ होता है। ये बेसिकली अंदाज़ा लगाने के लिए जो है ना यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि तुमने मुझे कल कॉल किया होगा, ठीक है, अब मुझे पता नहीं है, 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि तुमने मुझे कल कॉल किया होगा। हालांकि अगर आप इसे थोड़ा सा गा गी गे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, बट ये फ्यूचर का नहीं है, इट्स समथिंग विच कम्स फ्रॉम पास्ट, ठीक है। ये क्या है, ये पास्ट का है। पास्ट का कैसे है? पास्ट का ऐसे है कि आपने कल कॉल किया, अब मुझे उसका 100% पता नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि शायद, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ अपनी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर मैं मस्ट हैव का यूज़ करूँगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप क्रिकेट मैच देखते हो कभी कभी?
जी। हाँ, अब जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है? और जी। मतलब रात में मैच हो रहा है, ज़्यादातर डे नाइट मैचेस होते हैं और रात का मैच हो रहा है। अब रात में क्या होगा, मान लीजिए इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में है, ठीक है? और आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हो। सुबह में कोई आपसे आकर के पूछता है कि रात मैच में क्या हुआ, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इंडिया मैच जीत गई होगी, यही तो बोलोगे ना। हम्म। अब आपको 100% तो पता नहीं है कि इंडिया मैच जीती है नहीं जीती है, लेकिन आपको सिर्फ लग रहा है। वाई? बिकॉज इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, राइट? बहुत अच्छी पोजीशन में थी इंडिया। जी। अब आपने अंदाज़ा लगाया, तो आप जब उसे इंग्लिश में बोलोगे ना कि ऐसा हुआ होगा, इंडिया मैच जीत गई होगी, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा इंडिया मस्ट हैव वन द मैच। क्या बोलना पड़ेगा? इंडिया मस्ट हैव वन द इंडिया मैच। मस्ट हैव वॉन द या वन मैच। द मैच, यानी बेसिकली कोई भी चीज़ जो बेसिकली पास में हुई है उसके बारे में आपको 100% पता नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हो कि ऐसा हुआ होगा। तो वहाँ पर हम मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। और वो डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रांगली जो है ना वो अंदाज़ा लगा रहे हो। अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आप मस्ट हैव का यूज़ करेंगे, वहीं पर कम स्ट्रांग है तो फिर वहाँ पर माइट हैव और मे हैव का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? सो दैट्स हाउ वी जस्ट आप यूज़ इट। इसका एक एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, हाँ, मे बिल्कुल। हैव और माइट हैव हाँ, का। ठीक है, ठीक है। मे हैव और माइट हैव का भी। भाई मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि तुमने मेरे पैसे चुराए होंगे, ठीक है? अब ये मेरा बहुत ही कम, मतलब आप ये मान के चलिए मैं बहुत मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं 2-4% मुझे लगता है कि हाँ, तुमने मेरे पैसे चुराए होंगे। तो मैं यहाँ पर जो बोलूँगा, यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा दैट यू माइट हैव स्टोलन माय मनी, जहाँ पर सबसे कम आपको यकीन हो, ठीक है? वहीं पर अगर मैं कहूँ कि यू मे हैव स्टोलन माय मनी, तुमने मेरे पैसे चुराए होंगे। अब जैसे मैंने मे लगाया तो यहाँ पर मेरा थोड़ा-सा जो बेसिकली जो अंदाज़ा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। और अगर मैं कहूँ यू मस्ट हैव स्टोलन माई मनी, तो उसका मतलब हो जाएगा भाई तुमने ही मेरे पैसे चुराए होंगे, ठीक है? तो जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप बोल रहे हो तो वहाँ पर आप मस्ट हैव का यूज़ करोगे। जब आप थोड़ा कम स्ट्रांगली बोल रहे हो तो वहाँ पर आप मे हैव का यूज़ करोगे। और सबसे लास्ट में जो है वो माइट का यूज़ किया जाता है, बिकॉज माइट को हम लोग तभी यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है? तो जहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है? मैं अगर आप चाहें तो लिख भी सकता हूँ। हम ऐसे लिख सकते हैं दैट यू मस्ट हैव stolen my money. इट्स ओके सर, नो नीड। ओके, ओके, हैव यू गॉट आई इट गॉट द कंप्लीटली? पॉइंट। ओके, चलिए बहुत अच्छे। यस। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश को बोला जाता है, इफ़ आई से, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश को बोला जाता है, व्हाट वुड इट बी इन इंग्लिश? मुझे मालूम है लेकिन मैं अभी भूल रही हूँ। ये पैसिव वॉइस का है। इंग्लिश में बोला जाता है। यही थोड़ा सा आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता तो है चीज़ों का, बट अनफॉर्चुनेटली आप उस टाइम पे नहीं यूज़ कर पा रहे हो उन्हें जिस टाइम पे वो ज़रूरत पड़ती है, हाँ राइट? लेटर जी। ऑन आपको याद आता है, हाँ वो सर ने पूछा था, वो तो मैं बता सकती थी। तो इसमें हम लोग जी। जो है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे हम लोग ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन। हाँ। इंग्लिश इज स्पोकन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश को बोला जा रहा है, इफ़ आई इंग्लिश से, बोला जा रहा है। या इंग्लिश को बोला जा रहा है, सॉरी सर। हाँ, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। इंग्लिश इज बीइंग बीइंग स्पोकन। राइट। जी। वहीं पर मैं कहूँ कि इंग्लिश को बोला जा चुका है, सर इसमें बाय नहीं लगाते? बाय लगाएंगे अगर हमारे पास सब्जेक्ट का हमें पता हो। अब इसमें तो मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं बोला ना कि इंग्लिश को बोला जा रहा है, सब्जेक्ट किसके नहीं द्वारा है। बोला जा रहा है। जी। मान लीजिए मैं इसमें ये कहूँ, बाय तब लगेगा अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश को आमिर इंडियंस के के द्वारा, द्वारा बोला जा रहा है। हाँ, कि मान लीजिए मैं कहूँ कि इंग्लिश को आमिर के द्वारा बोला जा रहा है, तो मुझे बोलना पड़ेगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय आमिर, राइट? या फिर इंग्लिश इज बीइंग हमें। स्पोकन बाय आमिर, ठीक है? तो थर्ड होता है इसमें पैसिव वॉइस का, जिसमें हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन। इसका मतलब हो जाएगा कि इंग्लिश को बोला जा चुका है, ठीक है? इस तरीके से आप इनका यूज़ करते हो, राइट? दैट्स हाउ वी यूज़ ऑल दीज थिंग्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ग्रामर। येस यू नो, बट द पॉइंट इज दैट समवेयर यू विल हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप इस पर एक बारी काम कर लोगे ना, सो इट विल टेक ओनली मे बी 20 to 30 days, और मे बी लेस देन दैट, मे बी हो सकता है 15 days में भी कवर हो जाए आपका। बट वो तभी हो सकता है जब आप 1-on-1 के लिए जा रहे हो। अगर आप ग्रुप क्लासेस के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सभी के साथ चलना पड़ेगा, राइट? सर जी जी। first I want to do group classes. After that I will choose one by one. Okay.
ओके, नो one प्रॉब्लम। on one. यू कैन ट्राई दैट, नॉट एन इशू एट ऑल। आप जैसा चाहे वैसा आप ट्राई कर सकते हो। आप अभी पहले ग्रुप क्लासेस से स्टार्ट कीजिए, एंड अगर आपको लगता है लेटर ऑन दैट यस यू नो आई नीड लाइक पर्सनल गाइडेंस, देन वी कैन गो फॉर दैट एज वेल। ठीक है, हम उसके लिए भी जा सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है, देखिए जैसे किस तरीके से आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करा सकते हैं, तो मुझे लगता है पहले आपका बेसिक कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है ना जी कि जो यूट्यूब पे लोग हैं ना, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, नंबर्स ऑफ टीचर्स आर टीचिंग दीज डेज। अब यूट्यूब पे ना जी लोगों ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन कर दी है, और वो कॉमन ये है कि नो यू रियली डोंट नीड एनी टाइप ऑफ ग्रामर टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। जी राइट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल हो गया है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग इट। बट द पॉइंट इज़ दैट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कोई एक पर्सन है जिसे जो बेसिकली बोल रहा है, और जिसे अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मैं चाहिए था के लिए क्या बोलूँगा, अगर मुझे ये नहीं पता है कि शुड हैव उसके लिए लगेगा, तो मैं चाहे जितना भी मैं इन्वायरमेंट में रह लूँ मुझे नहीं समझ में आएगा। मुझे पता होना चाहिए, राइट, आई शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। जब तक मुझे इन तरीक़ों का पता है, देखो आप किसी भी बड़े टीचर के पास जाओगे ना, जैसे नीतू मैम है, जैसे खान सर हैं, जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ और बहुत सारे टीचर्स हैं, तो जब आप उन जी टीचर्स की, जैसे डियर सर है, डियर सर एक यूट्यूब पे है, ठीक है, तो जब मैंने मैंने उनसे काफ़ी बार जो है ना मैंने उनकी वीडियोस देखी। मैं आपको बताऊं कि सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉम्प्लेक्स ये वो सारी चीज़ें ओके सीखो, नो, नॉट एट ऑल। बट सिर्फ 4 टॉपिक्स जिसके ऊपर आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। सी, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके आई हैव टू स्पीक दिस लैंग्वेज प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनली बोलने के लिए आपको ग्रामर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट दीज 4 टॉपिक्स, आई एम रियली सॉरी, you will never be able to speak English correctly. Obviously you will be able to speak, आप अभी भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो कम्युनिकेट, अभी आप कर पा रहे हो। बट द पॉइंट इज दैट यू नॉट एबल टू डू दैट कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली। ठीक है, सही से नहीं कर पा रहे हो, तो सही से करने के लिए आपको इन 4 टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कवर करना। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप टेंसेस सीखो बिकॉज आपके टेंसेस क्लियर है, राइट, तो वो चीज़ें उसके आगे से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट, एंड जैसे आपका ये कवर होगा देन वी कैन गो फॉर अदर थिंग्स, राइट, जैसे डेली एक्सप्रेशन हैं, डेली जी कॉन्वर्सेशन हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये मैं सभी चीज़ें कराता हूँ, एंड जो भी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली करते हैं, तो येस दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश टुडे, और बट उसके लिए मेहनत है। मैं अब कभी ये नहीं कहता कि हाँ मैं सिखा दूंगा 100%। आई एम सॉरी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप नहीं बिल्कुल सीखोगे, राइट। आप मेहनत करोगे तो फॉर श्योर यू विल लर्न। ठीक है, आप बिल्कुल सीखोगे, फिर मैं आपको 100% गारंटी लिख करके दे सकता हूँ दैट येस यू कैन स्पीक इंग्लिश, और यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। बट द पॉइंट इज दैट इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट इट, लाइक आर वे, जो हमारा तरीका है वो आपको थोड़ा सा एक समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके साथ ही जी बिल्कुल आई एम प्रीटी श्योर जो आपके डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको 3 बेसिकली जो है वो हमारी टाइप्स हैं जो क्लासेस की। ठीक है, तो आप फर्स्ट ए आप ज्वाइन करोगे या बी ज्वाइन करोगे? देखो ए में और बी में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। ए और बी में फ़र्क ये है कि ए में जो है ना वो आपके बैच में जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, मे बी 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और उससे कम भी हो सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द B1, ठीक है, जब हम बी की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स कितने होते हैं? वहाँ पर सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट होते हैं बस, मैक्सिमम एक बैच के अंदर 4 या 5 स्टूडेंट, दैट्स इट। ठीक है, इससे ऊपर कोई भी स्टूडेंट उसके अंदर नहीं बढ़ाया जाता है भाई, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके कंफर्टेबल नहीं फील होता है, उन्हें लगता है कि नहीं मैं उतने अच्छे से नहीं सीख पा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है, और बाकी आपको 1-on-1 का तो पता ही है। ठीक है, तो 1-on-1 कैसे करते हैं दैट यू नो वेरी वेल। जी ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड दैट वन कि बेसिकली आपको कौन सा ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके लिए आपको मुझे अपनी जी डिटेल्स भेजनी पड़ेंगी, और डिटेल्स के साथ ही जैसे आपकी डिटेल्स मेरे पास आएंगी मैं आपका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी। डिटेल्स मीन्स
क्या क्या रहेगा उसमें मैं आपको डिटेल्स? व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है? मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो डिटेल्स आप मुझे भेज जी दीजिए। जी जी ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी जी। मच, इट वाज़ नाइस मीटिंग ओके यू। आपसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे बात करके, एंड आई होप टू सी यू अगेन इन माय क्लासेस। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय। ओके।